batsmen who can clear even the biggest of the biggest boundary. And Kiran Pawar. You can see both the umpires ready to take their position. Sir Abhijit Tadekar and Sir Sujit Rane, the two officials. So I also request the two openers of Dhruv Parsem to please be ready. Sudhan Thakur, yesterday we saw him opening the innings in the very first over, 2 sixes, 2 boundaries, and all those boundaries were eye-catching. Just timing the ball to perfection, and resting was done by this lightning fast outfield. Festival of Lights must have been ended, but Festival of Lights on this cricket ground at Suresh Raina continues. Yesterday, the finals of Pednam Premier League as the king of Dhruv Sports and Cultural Club, our leader, so Deepak Kalangudkar in the last edition said that the finals of Pednam Premier League will be played under floodlights the next year, and as per his saying, it came true. You can see Krishna Satpude and along with him Sudhan Thakur, the two openers, out at the center to put runs on the scoreboard. The flags you can see not flying at the moment, so that indicates that the breeze is not that much. So you need to put some power behind your shots, but both the batsmen, we know how easily they can clear the ropes here. The man who won the finals at Sangam Premier League last year, Krishna Satpude, with his team in deep trouble, he can turn the game on its head. He can be one-man army for his team. 12th man of both the teams. Kindly report in the commentary box. 12th man of Peacock Sattari, Peacock Farm Sattari, 12th man, and 12th man of Dhruv Parsem. Kindly report in the commentary box. You can see Bhushan Patil and Krishna Satpude having a good chat between them. The umpire is signaling the hand to start the innings. Just checking whether even the scorer is ready here. If you look at the field position, two fielders outside the 30-yard circle. One at the square leg for Krishna Satpude and one at long on. These are the two fielders outside the 30-yard circle. 12th man. Kalpesh will be starting the proceedings from the far end. Sudhan Thakur at the non-strikers end. Sir Abhijit Tadekar, the bowling end umpire. Sir Sujit Rane, the striking end umpire. Let's play, says the umpire. First ball. Full toss, low full toss this time. Straight to backward point. Waiting was the call. That is why we always say the calling has to be loud and clear. And that is how the calling was loud and clear. It could even be heard in the commentary box. So account yet to be open. This time stepping down the crease and getting off the mark with a single. Shying at the stumps. Lucky stop, otherwise it would have considered an extra run. So the scoreboard gets a move on with a single. Sudhan Thakur on strike. Outside edge, straight to short third man. It went quickly to the short third man region fielder. You could see the feet not moving. Oh, lovely shot this time into the gap. That will race for a boundary. What a cracking shot. Magnificent shot through the gully region this time by Sudhan Thakur. He gets his innings going with the boundary.
telling the bowler kuch kariye, but here Sudan Thakur is in good form. Oh, this time on the onside, still aerial, but lucky that the ball not traveling too far, just clearing the 30-yard circle. And sensible batting here by Sudan Thakur, making sure that there is no much dot ball pressure on Krishna Satpute at the other end. Quickly rotating the strike and making sure that Krishna is on strike. Sweeps the ball this time, Krishna into the gap, and good piece of fielding. 2 is the call, and see the running between the wickets. He has just played one match earlier, and it was the second innings in which he was batting, and now again he is batting in the first innings in back-to-back matches, and see the running between the wickets. This is the fitness that he has shown over his entire career. Not only deals in sixes and boundaries, but also he concentrates on running between the wickets. And that only makes the batsman more and more successful. You must have seen Virat Kohli. He never relies on boundaries. He also tries to convert those singles into doubles and doubles into threes. End of the first over. Score 8 for none. This is a good start by Dhruv Parse. Rakshit. Rakshit Gaukar to bowl the second over from the commentary box end. A tall bowler in height will be getting a good bounce here. Low full toss once again straight to the cover fielder, but the fielder missed to release the ball. He was in a hurry to release the ball quickly, and the ball slipping at the time of release. But the single was taken nevertheless. Score moves on to 9. Once again, Krishna on strike. Oh, swing and a miss this time from Krishna. Beaten all ends up. That will give confidence to the bowler. It is never easy to beat the batsman of caliber of Krishna Satpute. He must have won half the battle here with that delivery. Stepping down the crease, this time through the cover like a tracer bullet. No chance for the fielder at the cover region. A blink of an eye and the ball crashes in. For Krishna Satpute. 32 boundaries already in this tournament. Change of pace delivery. Played up peacefully. Scooping the ball into the gap. Back-to-back boundaries. He's turning the screws on now. He has got a good sight and the feel of the pitch. Ball coming nicely onto the bat here. That is how you need to play on innings. Watch the ball as you come at the crease with first 2-3 deliveries. And then once you are able to get the pace of the ball. This time getting him room and straight at the backward point, finding the fielder. Was looking to score the third boundary of this innings, but falling in the trap. The bowler just rolling fingertips, making sure that the pace is not provided to Krishna Satpute, and that is why you could see not timing the ball and finding the fielder at the backward point. This is a huge blow for Dhruv Parse, but they have a depth in batting. Raju Dabholkar, the next man to walk in, the man of the match in the previous match. Tomorrow morning, you will definitely see Rakshit Gaukar's status picking this wicket of Krishna Satpute. It might be on WhatsApp, Instagram,
It will be his status, definitely. Short ball this time. Raju makes it sure that he puts the ball into the gap and gets off the mark. This is the class of the batsman. He wants to get off the mark as quick as possible. The score moves on to 18. End of 2 overs, end of the power play. Both the teams will be happy the way the match has progressed so far. Apart from that big blow of Krishna Satpude, Peacock from Sattari will be more happy than Dhruv Parsam because they have got a big fish in the very first power play in the second over. Yes, DJ. The signal of Dhruv over from the umpire. So you can see all the fielders inside that 30-yard circle. This is a big over. They have taken this over. They might have taken this over because they have just seen the back of Krishna Satpude. And they might be wanting another wicket in this Dhruv over, trying to put pressure on their opponents as the batsmen will be looking to score boundaries in this over. Kalpesh to continue. Full toss and Raju misses out. This was a gift. But everything is not possible. This time it was a dot ball. Lucky the bowler to get away with this delivery. Oh, wrapped on the legs, allowed appeal, up goes the finger. This is the wicket that they were looking for. Back-to-back wickets in quick succession. Second over bringing the first wicket, and now third over, the Dhruv over, bringing the second wicket. Raju being dismissed early. Parts not only of Goa but also recently in Bhopal. Outside edge this time. Quick single as Guru gets off the mark. The pull shot that he plays, nobody else plays his heads better than him. He reads the length of the bowler very early. Sudan Thakur. Lawful toss. This time straight to the fielder. Quick single. Missing a direct hit. And Sudan having a sigh of relief in the end. With a single, score moves on to
20 for 2. This is not the thing that Dhruv Parse would be wanting in the power play. Raju Dabholkar falling very early in that over. This time the ball is up in the air. Fielder settling underneath. And he puts it down. That reminds me of Hassan Ali. Definitely Hassan Ali, because it was Matthew Wade, another left-handed batsman who was batting in World T20 semi-finals. And there is a pressure of Guru that the ball slipping from the hands of the fielder. The only thing that Hassan Ali dropped it at square leg, this was at cover region. What a massive miss this will be. This time Sudan, the very next ball goes into the crowd. Bye-bye ball, goodbye, see you later. A magnificent shot over the square leg. Drew over for both the teams. A big wicket of Raju in that over. And a sigh of relief as Guru was dropped in that over. Otherwise it would have been disaster. Losing 3 top batsmen within the first 3 overs of the innings. (27 for 2) after 3, going at 9 runs per over. Missed time shot, but again falling in no man's land. Guru is not getting that timing that he is looking for. Slightly playing the shot early. On both the occasions, you must have seen the ball not clearing even the 30-yard circle. So he needs to give himself a bit of time, a few deliveries to get used to the pace of the ball. And you know, he can change his strike rate from 90 to 150 in just 3 deliveries. Change in field, and that is why the dead ball being signaled. A swing and a miss this time from Sudan Thakur. Not getting in line of the delivery this time. Catch it is the call. This time will it be taken? 1 bounce. And then in the second attempt, he has taken it. So top 3 batsmen back in the hut. Winning the toss, like to field first, because the batsmen in a hurry of putting runs on the scorecard, they have a certain target at the beginning of the innings, and in order to set the target for their opponents, they try to go after the bowler, and in that passage they lose a couple of early wickets, and that puts them on the back foot. You must have seen recently in T20 World Cup, almost 85% of the matches have been won by the team fielding first. And with the dew, it becomes easier to bat second. The ball coming nicely onto the bat. Even the ball
getting wet on the outfield. Difficult for the bowlers to grip the ball. Apali, the new batsman. Short ball, this time Guru. No need of second invitation for him to send the ball into the parking lot. The ball has been dismissed into the crowd. Hands being raised. 34 with that 6. Slower ball. This time over the cow corner. He bangs the ball on top of the commentary box. Up in the orbit and over the commentary box. What a magnificent shot this is from Guru. Guru reads the length of the bowler. Over pitch delivery, just gliding the ball toward the short third man. Good attempt by the wicket keeper. And that sums up the over number 4. End of 4 overs. It's 40 for the loss of 3 wickets and change in commentary box. Over to Sir Ashok Naik, the radio commentary. थैंक यू डीजे, धन्यवाद तुषार नाइक। आधे ओवर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद 10 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है मैदान पर। 40 रन टोटल 3 विकेट पर। नए बल्लेबाज अपाले कलंगुटकर और सामने गुरु प्रसाद आरोस्कर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। 15 का अपने खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए सामने से बॉलिंग में परिवर्तन। सूर्या दूर वाले छोर से बड़ा शॉट, इस बार ओवर पिच गेंद पर एक तगड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। सही नसीहत, ताकत सही थी। 6 रन के साथ से अपाली कलंगुटकर ने अपना खाते शुरू की और सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से एक बार फिर से अगली गेंद लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर 15 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे गुरु प्रसाद आरोस्कर। खेल जारी 5वें ओवर का ध्रुव ट्रॉफी, एक बहुत ही बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का, डे नाइट का। फुल टॉस गेंद इस बार प्ले किया खूबसूरती के साथ, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेके तरफ गेंद निकलती हुई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए।
बार टॉप पेज लगा, गेंद खड़ी हो गई फाइन लेग पर, फील्डर और इसी के साथ सीधे हाथों में निकलती हुई। खेलना चाहते थे फिर से एक बार स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ, लेकिन बल्ले का टॉप रीच लगा, ऊपरी हिस्सा लगा और शॉर्ट फाइन लेग पर बहुत ही अच्छा कैच और एक सफलता मिलती हुई। इसी के साथ टॉस जीतकर मैदान पर पिकॉक फॉर्म 70 क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई और बल्लेबाजी कर रही है ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम। थैंक यू डीजे। 10 पर खुद के व्यक्तिगत अपाले कलंगुटकर, टीम का टोटल स्कोर 50 रन 4 विकेट पर। और गुरु प्रसाद का साथ देने के लिए टीम के कप्तान मैदान पर, विकेट कीपर टीम के बल्लेबाज स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर। 50 रन टोटल स्कोर 4 विकेट पर, 5वां ओवर चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चलेगी ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन पर एक गली पर फील्डर है, मिड ऑफ पर एक फील्डर। सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर, फुल टॉस ऑफ स्टंप पर और इस बार फील्डर को बीट किया गेंद ने। गेंद निकलती हुई वाइडिश गली की तरफ, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। क्रिकेट टीम पहुंची 54 रन पर, 54 लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बार गेंद थोड़ा सा हवा में, गेंद जरूर निकली थी गली की तरफ, फील्डर से काफी आगे गिरी। शानदार थ्रो। एक रन इस बीच में स्कोर के खाते में। गुरु प्रसाद आरोस्कर और उन्हीं के साथ टीम के कप्तान स्वप्निल मलिक, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर। सूर्या गेंदबाजी पर और ओवर के साथ जो कि इसी 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 11 रन प्रति ओवर ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम रन बना रही है। टोटल हो चुका है 55, 55 रन 4 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 6 गेंदों में 15 रन पर खुद के व्यक्तिगत गुरु प्रसाद आरोस्कर, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और कप्तान जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए 5 पर स्वप्निल मलिक बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। गेंदबाजी के मोर्चे पर किरण पवार, कमेंट्री बॉक्स की ओर से मुकाबला मैदान पर पिकॉक फॉर्म 70 क्रिकेट टीम, टॉस जीतकर फील्डिंग और बल्लेबाजी ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम। इस बार बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर जाकर हटकर खेला, कट किया गेंद को। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद निकलती हुई, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई गेंद 4 रन के लिए। विकेट पर छोटी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार फिर से थोड़ा सा हवा में, नो मैंस लैंड में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा के बल्ले से कप्तान टीम के ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम के एक जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद हुक्के बड़ी खूबसूरत के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ सीमा रेखा को पार करती हुई गेंद और एक सनसनाता दंदनाता शॉट 4 रन के लिए। थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं किरण पवार। ओवर पिच गेंद इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में दूसरे के लिए निकले और देखना होगा जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते तब तक और एक रन जुड़ता हुआ यानी टोटल मिले इस शॉट के साथ 3 रन स्कोर के खाते में। टोटल पहुंचा 70 रन पर 20 पर खुद के व्यक्तिगत स्वप्निल मलिक, 15 रन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर और किरण पवार कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, लोअर फुल टॉस गेंद सम्मानजनक खेला, ऑफ साइड पर कवर पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, गेंद को सफाई के साथ उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन 4 विकेट पर। बल्लेबाजी को मौका दिया, बल्लेबाजी कर रही है। टोटल 71 रन 4 विकेट पर। इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद निकली थी स्क्वायर लेग पर लगभग दूसरे तीसरे प्रयास में, लेकिन आखिरकार गेंद हाथों से फिसली। तो इसी के साथ और एक ओवर समाप्त हुआ। खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और स्कोर हो चुका है टोटल 71 लॉस ऑफ। T20 के मुकाबले में और वो कैच काफी महंगा साबित हो रहा है इस मैदान पर। गुरुप्रसाद बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वप्निल मलिक 20 पर, गुरुप्रसाद 16 पर। खेल जारी शुरू होता हुआ 7वें ओवर का और सूर्यकांत उर्फ सूर्या अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से। फुल टॉस गेंद इस बार खेला फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, नो बॉल का इशारा, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए और स्कोर के खाते में इजाफा होता हुआ टोटल 5 रनों का। टैंकर डीजे नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा। गुरुप्रसाद आरोस्कर और स्वप्निल मलिक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की। और फ्री हिट की गेंद पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 82। बहुत ही शानदार शॉट, शॉट ऑफ प्लेन गेंद और गुरु प्रसाद के बल्ले से एक बहुत ही बढ़िया शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार फुलर लेन के ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइल्ड बॉल के साथ और एक रन जुड़ गया। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फुलर लेन की एक जरूर गेंद थी, थोड़ी सी यॉर्कर लेन की, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर थी और एक रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर आगे बढ़ा 83, लॉस ऑफ 4 विकेट। खेल जारी 7वें ओवर का। गुरु प्रसाद खुद के व्यक्तिगत 26 रन पर सामना करते हुए आगे निकले। इस बार गेंद हवा में, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ा 85 रनों पर। डे नाइट का क्रिकेट का एक बिल्कुल बड़ा महासंग्राम, ध्रुव ट्रॉफी का एक से बढ़कर एक रति महारथी इस मैदान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढा एक क्लासिकल क्रिकेट मैदान पर, लेदर क्रिकेट का बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव का गुरु प्रसाद के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट, सेंसेबल क्रिकेट, सम्मानजनक खेला, अच्छी गेंद को सिंगल बनाया सिलिमिडॉन पर फील्डर और दर्शक जो बाउंड्री लाइन से बाहर चिपके हुए जो कि ग्राउंड पर मैदान पर बैठे, दोस्तों आपसे गुजारिश है थोड़ा पीछे हटकर बैठिए, इस मैच का आप वहीं से जरूर मजा लीजिए। 90 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। सामने स्वप्निल मलिक 20 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट इस बार मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा गेंद हवा में खड़े हो गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे आते डीप लॉन्ग ऑन से और उस कैच को दबोचते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। स्वप्निल मलिक वापस टीम के विकेट कीपर, टीम के कप्तान, खुद के व्यक्तिगत 20 रन पर, सामने गुरु प्रसाद आरोस्कर 33 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और टीम का टोटल स्कोर 90 पर पहुंचता हुआ। अपने बॉलिंग मार्ग पर सूर्यकांत ओवर पर सूर्या और अच्छा शॉट ऑन साइड पर, गेंद निकली फाइन लेग की तरफ, सिंगल, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, जब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ से ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर, एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और इस एक रन के साथ से खेल समाप्त होता हुआ 7वें ओवर का और 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 91, 91 रन 5 विकेट पर। गुरु प्रसाद आरोस्कर 34 रन पर और नए बल्लेबाज सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। थैंक यू डीजे। आखिरी ओवर पहले इनिंग का और कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग मार्ग पर संकल्प गेंदबाजी करने के लिए।
ऑफ टेम्पर ये गेंद थोड़ी सी ऑफ ब्रेक कट होकर बाहर की तरफ निकली। बढ़िया शुरुआत इस आखिरी ओवर में। पिकॉक फर्म 70 क्रिकेट टीम टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर और बल्लेबाजी को मौका दिया ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम को। बस वही लाइन पर वही गेंद, इस बार थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद जो कि बाहर गिरी थी और बाहर की तरफ निकली। अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम के। 92 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 5 विकेट, 92 रन 5 विकेट पर। और इस बार छोटी गेंद मिली, हुक किया बड़ी खूबसूरती के साथ, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। ध्रुव ट्रॉफी में अब राउंड विकेट संकल्प अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, खोदकर खेला हुआ शॉट, सिंगल बनेगा मिड ऑफ पर। जब तक फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आखिरी ओवर संकल्प गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। इस बार बाहरी किनारा बल्ले का और इसी के साथ ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे होते हुए स्कोरबोर्ड पर। 5 विकेट पर 100 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। गुरु प्रसाद को दाद देनी पड़ेगी, सामने से महंगा साबित होता यह मौका दिया 41 पर खुद के। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सही सलामत और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम के दोनों लेफ्ट हैंडर सूरज गावड़े उर्फ बाबू 1 पर और खुद के 42 रनों पर 17 गेंदों का सामना करते हुए गुरु प्रसाद आरोस्कर। ओवर पेज गेंद लॉफ्ट किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद सीमा रेखा के लगभग अंदर, कोशिश बढ़िया। थैंक यू डीजे। तो अंतिम गेंद पर सफलता, पीकॉक फर्म 70 क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग की मैदान पर, बल्लेबाजी की ध्रुव पेरनेम क्रिकेट टीम ने और टोटल स्कोर हो चुका है 101, 101 रन, एक सम्मानजनक टोटल 8 ओवर में और 48 गेंदों में। मैच को जीतने के लिए टारगेट रखा है 102 रनों का। गुरु प्रसाद आरोस्कर की शानदार बल्लेबाजी, एक बहुत ही शानदार शॉट देखने को मिले। फिलहाल क्या होता है दूसरे इनिंग में, किस तरह से खेल होता है, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। आइए जय भोसले के साथ।
धन्यवाद अशोक। सभी दर्शकों का इस ध्रुव ट्रॉफी के आज के पहले दिन में हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं मुकाबला पिकअप फार्म 70 और ध्रुव पेयर नेम के बीच में। खराब थोड़ी सी शुरुआत रही थी, लेकिन उसके बाद संभाला अपने टीम को गुरु प्रसाद ने। शानदार बल्लेबाजी अभिजीत बारी यहाँ पर 42 रनों की एक झटपट पारी खेली यहाँ पर स्वप्निल ने, और जिसके चलते हुए यहाँ पर 101 रन का फासला तय कर दिया। अगला मुकाबला होगा आज के दिन का इनया ब्रदर्स तीसवाड़ी और टीकेजी बिचोलीम के बीच में। दोनों टीमों को रिक्वेस्ट है, आप तैयार रहे अपने खिलाड़ियों के साथ। कप्तान से रिक्वेस्ट है, अगला मुकाबला इनया ब्रदर्स तीसवाड़ी और टीकेजी बिचोलीम के साथ बीच में होगा। चलो चलते हैं मैदान के अंदर। मुकाबला पीक ऑफ 70 और ध्रुव पेयर नेम के बीच में। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था 70 टीम ने, और निर्धारित 8 ओवर में 101 रन बनाए। जीतने के लिए 102 रनों का लक्ष्य रखा है 48 गेंदों में। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाते हुए 12th मैन ऑफ 70 ऑफ स्टंप से बाहर तेजी के साथ निकलती हुई जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। किरण पवार और सागर की ये जोड़ी मैदान के अंदर है। और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गौरीश नागवेकर पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, और उस मुकाबले के बाद इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने अच्छा कारनामा कर दिया। ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब रही, लेकिन उसके बाद संभाला अपने टीम को। यार करलिंग की गेंद जमीन के सहारे खेला, कवर की दिशा से पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी क्या तेजी के साथ निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका निकलता हुआ इस दूसरी पारी का। 102 रनों का जवाब देते हुए 4 रन। किरण के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार कवर ड्राइव आपको देखने को मिला इस मैदान पर। जमीन को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। गौरेश नागवेकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार पैडल सिर्फ खेलना चाहते थे यहाँ पर राजू, शायद हाथ को लगी है जब फिसले थे वहाँ पर जमीन और बल्ले के बीच में थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा मिल गया, शायद लगता है करा रहे थे थोड़े से। लेकिन बेहतरीन फील्डिंग राजू दाभोलकर की, बेहतरीन वापसी गौरेश नागवेकर थी। मौका था यहाँ पर शायद किरण पवार को, शायद फाइन लेग की दिशा में खेल लेते तो और कुछ रन बन सकते थे, लेकिन बेहतरीन वापसी इस युवा गेंदबाज गौरेश नागवेकर द्वारा। वो आगे निकले थे खेलने के लिए, पूरी तरह से पस्त कर दिया। गेंद चक्काती हुई चली गई विकेट कीपर के पास से, और कवर बैकअप वहां पर बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी। जैसे गेंद नीचे गिरी उसी स्पीड से निकल गई। बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी, चौका जरूर निकला था हाफ वाली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी करता हुआ ये युवा गेंदबाज।
102 रनों का जवाब अब तक, टोटल 4 रन बगैर किसी नुकसान पर पीकॉक फार्म 70 गोवा की टीम। ओ इस बार शायद बल्ले को लगाना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से लगी नहीं गेंद बल्ले को। तेज रफ्तार भरी गेंद, टाइम नहीं कर पाए, काफी निराश होंगे क्योंकि इस गेंद के ऊपर सिर्फ बल्ला लगाने की आवश्यकता थी। थोड़े से क्लियर कर देते तो शायद रन बन सकते, लेकिन गेंदबाज की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई। जिस तरह से गेंदबाजी उस बाउंड्री लगने के बाद मेडन गेंदे डाली है, डॉट गेंदे डाली है, बिंदी गेंदे डाली है। इस बार टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले और एक मेडन गेंद के साथ ओवर समाप्त होता। एक चौका निकलने के बावजूद यहां पर इस ओवर में निकले मात्र 4 रन। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, जोरदार तालियां शायद इस युवा गेंदबाज के लिए। ये पेरनेम तालुके का नगीना, ये गोवा राज्य का नगीना इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी के जलवे दिखाता हुआ। अब गेंदबाजी में सागर कामली नजर आएंगे। ओवरसीज खिलाड़ी है, 25 नंबर की जर्सी, प्रोफेशनल पूरी तरह से। और सामने रहेंगे दूसरे सागर, जो कि सामने वाली बल्लेबाजी टीम से सागर टू सागर। देखना है सागर का किनारा कहां तक चला जाता है। दो एक तरफ है बल्लेबाज, एक तरफ है गेंदबाज, और किनारा किसको मिलता है ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये ध्रुव ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला लगभग यूट्यूब के माध्यम से 1800 लोग यहां पर लाइव देख रहे हैं। इससे पता चलता है इस ध्रुव ट्रॉफी की लोकप्रियता किस तरह से, किस कगार के ऊपर खड़ी है। समीर, हम अक्सर कहा करते हैं इस ध्रुव ट्रॉफी के बारे में, 2 साल में एक बार होती है जरूर, लेकिन जिसके लिए जानी जाती है वो मात्र इस मैदान के ऊपर नजर आता हुआ। दूध से नहाए हुए स्टेडियम में, इस मैदान के बीच में, दुल्हन से सजे हुए इस मैदान के बीच में ध्रुव ट्रॉफी का आगाज, आज का पहला दिन और ये महत्वपूर्ण मुकाबला। इस बार खड़ी हो गई गेंद, हवा में कैच का मौका, सेफ हैंड स्वप्निल मलिक के हाथ में। पहले विकेट का पतन, सागर कामली ने सागर को किनारे भेज दिया। का नाम है भूषण पाटिल। आज जितने भी ओवरसीज खिलाड़ी खेले हैं उनके जर्सी का नंबर है 10, चाहे वो ओंकार देसाई हो, भूषण पाटिल हो या कृष्णा सातपुते हो। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर, और जो कि सामना करेंगे सागर कामली की गेंदबाजी का। एक प्रोफेशनल बल्लेबाज सामने, एक प्रोफेशनल गेंदबाज सामने, और ये प्रोफेशनल प्रतियोगिता इस मैदान के बीच में शुरू। आते आते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और गैप में से गेंद, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सूरज द्वारा। देखते रहे भूषण पाटिल, शायद उनको लगा गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, लेकिन लाजवाब फील्डिंग इस युवा सूरज द्वारा। एक सूरज घर की ओर निकल रहा है, लेकिन ये सूरज मैदान के बीच में उगता हुआ नजर आए, चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे फील्डिंग से हो, अपने गेंद के लिए 100% एफर्ट देने के लिए कोशिश कर रहा है। एक सिंगल के साथ खुद का खाता खोला, और टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 5 रन, रुका हुआ जो कि
टोटल था वो आगे बढ़ता हुआ सिंगल के साथ 5 रन। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार किरण नजर आएंगे और सामना करेंगे सागर की गेंदबाजी का। ठीक ठाक गेंदबाजी, एक विकेट भी निकला है और अच्छी सही निशाने के ऊपर की गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़े से कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में शायद दूसरा लेना नहीं, शायद इंतजार कर रहे थे उस बड़े शॉट का। इस बार अच्छी गेंद, पहला बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे लेकिन इन मौके के ऊपर बल्ले को नीचे लाए, गेंद को सिर्फ दिशा दिखलाई, सहलाया फुसलाया लेकिन कुछ रन नहीं मिलेंगे। वहां पर कृष्णा सरपदे आपको नजर आ रहे हैं, शॉर्ट थर्ड मैन, सेकंड स्लिप गली की दिशा में आपको। और ये पटकी हुई गेंद हवा में काफी देर तक, गौरेश नागवेकर गेंद के नीचे, शायद ये गेंद हाथ को लग जाती, शायद एक कैच हो जाता तो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में इनका नाम शामिल हो जाता, लेकिन कैच छूटा और तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का और 2 रन के बदौलत टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के जवाब में। अब फिर एक बार थोड़े से फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, शायद गुरुप्रसाद आरोस्कर को वहां पर भेजा जा रहा है। काफी अच्छी फील्डिंग गौरेश नागवेकर भी कर लेते लेकिन कभी ऐसे रोशनी में इस तरह की फील्डिंग शायद नजर नहीं आती है। गेंद जब ऊपर चली जाती है काफी तेज और हिलती रहती है, जिस तरह से हवा का झोंका आप देख रहे हैं, फ्लैग आपको नजर आएंगे किस तरह से हवा बह रही है और इधर उधर गेंद जब डांस करती है तो कैच लेना उतना आसान नहीं बनता। और फिर एक बार, इस बार आड़े बल्ले के साथ और गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। यानंतर सामना होईल तो इनया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम। यानंतर सामना खेळवला जाईल इनया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम। तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे। यानंतर सामना खेळवला जातोय इनया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम। जोरदार अपील यहाँ पर लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर के मन में थोड़ा सा संदेह था, गेंद शायद विकेटों को छोड़कर जा रही थी और समाप्त, एक अच्छा ओवर निकलता हुआ, सफल ओवर निकलता हुआ। 2 ओवरों का यहाँ पर खेल समाप्त, पावर प्ले के 2 ओवर और टोटल देखा जाए तो 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले 12 गेंदों का खेल समाप्त होने तक। को नजर आते हुए जिन्होंने इस इनिंग की गेंदबाजी की शुरुआत की थी, गौरेश नागवेकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामना करेंगे भूषण पाटिल। ये देखने के लिए मजा आ जाएगा क्योंकि भूषण पाटिल जैसा उनका कीर्तिमान है और वैसी बल्लेबाजी की अपेक्षा उनके खेमे से नजर जताई जा रही। देखना पड़ेगा ये युवा गेंदबाज इस बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी कर लेता है। फुल टॉस गेंद, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद आई नहीं। सिंगल तो जरूर निकलेगा, मिड विकेट से खिलाड़ी जब तक आए उसको फील्ड करे, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा जो कि 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 90 रनों की और आवश्यकता है और इसमें अभी बचे हुए इस ओवर के बाद रहेंगे 5 ओवर, उसमें रहेगा एक ध्रुव ओवर और लेकिन तब तक एक साझेदारी की, झटपट साझेदारी की आवश्यकता 20-25 रनों की और अभी कम गेंदों में। जिस तरह की
बल्लेबाजी गुरुप्रसाद ने की थी उस तरह की आवश्यकता, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए ध्रुव पेडनेम टीम को जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है वैसे ही सटीक गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी की आवश्यकता। एक अच्छा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला इस मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और इस बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, शायद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी लेग गली की दिशा में 360 नितेश गड़ेकर थे तैनात। गेंद को जब तक फील्ड करे एक सिंगल तब तक निकलता हुआ और सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा अब 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से ये मैदान है, जिस तरह से इस मैदान के ऊपर ये छः दिन से लगातार क्रिकेट खेला गया है, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी राज आ जाता है ये मैदान। इस मैदान के ऊपर काफ़ी रन बनते हैं और काफ़ी रनों का आसानी के साथ चेस भी किया जाता है, यह हमने देखा है। यार कर लें की गेंद, ये अच्छी गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी, जो कि तेज गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। यॉर्कर लेंग गेंदबाजी कर रहे हैं, जानते हैं भूषण पाटिल को, थोड़ा सा इधर उधर अगर गेंद भटकोगे तो उसके ऊपर बड़े शॉट जरूर खेलेंगे, इसलिए सही लाइन और सही निशाने के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। सिर्फ सिंगल के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है भूषण पाटिल को और टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 गेंदों का अब तक खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यार कर लें की गेंद फिर एक बार, लेकिन सीधे फॉलो थ्रू में गेंदबाज के, ये अच्छी गेंदबाजी, ये निशानी है। और क्यों इन्हें गोवा के राज्य टीम से खिलाया गया था बड़े बड़े प्रतियोगिता में, और क्या कैसे इन्होंने उस अंजाम दिया था अपने उस प्रतियोगिता में, ये दर्शाता हुआ इस मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने एक सटीक लाइन, सही दिशा के साथ अनुशासित भरी गेंदबाजी गौरेश नागवेकर अपने टीम के लिए करता हुआ लगभग जकड़ कर रखा है इन दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार खेल दिया है हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी वहां पर तैनात थे आपाली कलगुटकर, सेफ हैंड और एक विकेट यहां पर। किरण आउट होकर पहले में वापस। प्रवीण ये जाते हुए अब नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दबाव बना लिया था गौरीश नागवेकर ने, अपने गेंदबाजी में सिर्फ 3 सिंगल निकले थे इस ओवर में और वो दबाव था एक बड़ा शॉट लगाकर कम करने का, और यही प्रयास किया और आउट होकर पहले में वापस जाना पड़ा किरण पवार को। अब मात्र नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवीण जाते हुए और सामना करेंगे गौरीश नागवेकर की गेंदबाजी का। बड़े टोटल का पीछा करना है इस मैदान के ऊपर और रोशनी में अगले मुकाबला जो होगा वो दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है फिर एक बार आप टॉस के लिए संपर्क करें। ओ ये टांगों के ऊपर थी गेंद, ओहो हो ये लाजवाब, ये है ड्रीम कैच। अमीर सालगांवकर ने छलांग लगाई और ये टाइमिंग जंपिंग और इसी के साथ और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 14 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर।
सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 3 रन बनाए हैं। उनको एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा। दर्शक जिस आशा से, जिस अपेक्षा से इस मैदान के ऊपर आए हैं इन ओवरसीज खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए, उनको पूरा करना पड़ेगा, उनकी तमन्नाओं को जगाना फिर एक बार पड़ेगा। और ओवरसीज जो खिलाड़ी हैं उनका खेल किस तरह से होता है, किस तरह से प्रोफेशनल खिलाड़ी खेलते हैं, ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण इस मैदान के ऊपर पेश करना पड़ेगा। गेंदबाजी में फिर एक बार सागर कामली नजर आते हुए यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक जुड़ चुके हैं और उनका हम हार्दिक स्वागत जो कि करते हैं इस, और हम सभी को हमारा इस कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं जय भोसले, मेरे साथ है समीर पांडरे, रेडियो कमेंटेटर वॉइस ऑफ रेडियो अशोक नाइक, और साथ साथ अंग्रेजी में एक शानदार विवरण देने वाले गोवन कमेंटेटर जो कि तुषार नाइक, और हमारे स्कोरर के रूप में बैठे धीरज, और उनके साथ निखिल कुड़व, और हमारे कंप्यूटर स्कोरर मनोज, और यूट्यूब जिन्होंने इस गोवा और सिंधुदुर्ग जिले में लाया है वो है यूट्यूब के माध्यम से लगभग 197 देशों में इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है गौरव सावंत और उनकी तमाम टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सागर कामड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर, भूषण पाटिल स्ट्राइक पर, ये दोनों ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने। देखना है जीत का पलड़ा इस ओवर में किसके ओर झुकता है। स्कोर 14 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 18 गेंदों का खेल समाप्त। अभी भी 30 गेंदें और बाकी है और अभी भी जीतने के लिए 88 रनों की और आवश्यकता। ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली। अंपायर का हमारे ओवर वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ टोटल में बदला होता हुआ, टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंदबाज के नजदीक से खेला हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन इसके ऊपर जब तक हाफ वाली फील्ड करे उसे तब तक एक सिंगल निकलता हुआ। भूषण पाटिल हर संभव प्रयास कर रहे हैं, छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सागर कामली जानते हैं भूषण पाटिल को कहां गेंदबाजी करनी है, कहां उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, कहां उनकी वीकनेस है, और वहीं पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक जिम्मेदारी पारी निभाने की कोशिश में कोई भी गैर जिम्मेदाराना शॉट यहां पर खेलने की कोशिश नहीं हो रही है भूषण पाटिल की ओर से। अब मात्र स्ट्राइक पर है कल्पेश, जिनको अभी अपना खाता खोलना है और सागर के इस गेंद का सामना करना है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गुरुप्रसाद आपको नजर आ रहे हैं। जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, एक सिंगल निकला, खुद का खाता खोला, टोटल आगे बढ़ता हुआ। अब मात्र जो कि 17 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 85 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर रन रेट है 18.21। शॉर्ट गेंद और कवर के ऊपर से एक बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए यह भूषण ब्रांडेड चौका है। ये नजाकत भरा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला। 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 21 रन। देखिए किस तरह से खुद को जगह बनाई अपने इस स्ट्रोक के लिए, और गेंद स्टैंड में चली गई 4 रन के लिए। गेंद फिर एक बार वापसी करती हुई, टोटल 21 रन। अभी बहुत सारे चौकों के इस तरह की आवश्यकता है। अगर जीत हार और जीत के बीच में कोई खड़ा है वो है भूषण पाटिल, और गेंदबाज सागर कामड़ी फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार बेहतर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ रीजन में आगे निकले थे थोड़े थे गौरीश नागवेकर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए एक लाजवाब ताबड़तोड़ छक्का। 2 गेंदों के ऊपर 2 तगड़े शॉट निकले। इसके पहले गेंद के ऊपर कवर की दिशा में निकला था चौका, और ये लॉन्ग ऑफ रीजन में निकला है छक्का, और टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के इस जवाब में। गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट इतना तगड़ा था कि गेंद देखते देखते सीमा रेखा पार चली गई। सागर कामड़ी फिर एक बार
और ये दूर फेंकने की कोशिश अब काफी दूर थी, बल्लेबाज से पीछा जरूर करना चाहा, जानते थे यहाँ पर सागर कामले अगर इनके शरीर के ऊपर गेंदबाजी करोगे तो शायद एक बड़ा शॉट और निकल सकता है लेग साइड की दिशा में, इसलिए उनसे दूर गेंदबाजी की, होशियारी और चतुर भरी गेंदबाजी। और इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से फिर एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये जो बड़ा ओवर चाहिए था वो बड़ा ओवर निकला, इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का निकला। अब मात्र टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 4 ओवरों का खेल समाप्त, यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त, 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी है, उसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी है और 24 गेंदों में जीतने के लिए 71 रनों की है आवश्यकता। क्या यहाँ पर पीकॉक फार्म 70 इस मुकाबले को जीतना चाहेगी? अगर जीतना चाहेगी तो भूषण पाटिल को रुकना पड़ेगा आखिरी ओवर तक। अगर यहाँ से जो कि पलड़ा भारी है उसको और भारी करने के लिए ध्रुव पेरनेम टीम को एक बड़े विकेट यानी कि भूषण पाटिल के विकेट की तलाश है। क्या होगा आने वाले 24 गेंदों में, किस तरह से हो जाती है गेंदबाजी और किस तरह से हो जाती है बल्लेबाजी। चार षटकात होत आहेत त्या 31 धावा व उर्वरित 4 षटकात काढायच्या आहेत त्या 71 धावा। गोलंदाजीवर या ठिकाणी अनुभवी असा राजू दाभोलकर, चेंडू सुरेखरित्या टोलवला जातोय, हलकेच जातोय चेंडू डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं, एकेरी धाव सहजगत्या ही निघते कल्पेशच्या खाती। एकेरी धावेने तो स्ट्राईक रोटेट करतोय व आक्रमक शैलीने खेळी करणाऱ्या भूषण पाटीलला तो फटकेबाजीची संधी देतोय। भूषण या सामन्यामध्ये मात्र लयीत आलेला दिसतोय, गत सामन्यामध्ये त्याला विशेष चमक दाखवता आली नव्हती, आपल्या नावलौकिकाला साजेसा खेळ करता आला नव्हता, मात्र त्याची कसर त्याची उणीव या महत्त्वपूर्ण सामन्यात भरून काढेन असं ठामपणे तो व्यक्त करताना मैदानाच्या चारी बाजूला त्याची फटकेबाजी ही प्रेक्षणीय ठरते व निश्चितपणे तमाम प्रेक्षक वर्ग त्याच्या फटकेबाजीचा आनंद हा लुटताना दिसत आहेत। 32 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। परदा राजू दाभोलकर सज्ज, उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू दोन्ही हात समांतर पंचांकडनं होत आहेत, अवांतर धावेची खुणगाण ही पडते, एकेरी अवांतर धावेने या ठिकाणी 33 धावा ह्या धावफलकावर। 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त। परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये फटका टोलवला जातोय, अतिशय सुरेख असा प्रयत्न डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेवर सूरज उर्फ भाऊ करतोय, मात्र प्रयत्न त्याचे अपुरे पडतायत। अंतिम क्षणी चेंडू त्याला दगा देतोय, मात्र एका सुरेख अशा प्रयत्नाला टाळ्यांच्या गजरात मानवंदना सुज्ञ असा प्रेक्षक वर्ग हा या सुरेश रैना मैदानावरनं देतोय। वन शॉटचा इशारा या ठिकाणी पंचांकडनं येतोय, म्हणजे केवळ एकेरी धाव ही गणली जाते धावफलकावर व 34 अशी धावसंख्या ही स्थिरावलेली दिसते। 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे वाईडचा इशारा पंचांकडनं जी 35वी धाव अपेक्षित होती ती वाईडच्या स्वरूपात हस्तगत केली जाते, ती अर्थातच पीकॉक फार्म 70 क्रिकेट संघासाठी 35 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 22 चेंडू 67 धावांचं खडतर असं लक्ष। राजू दाभोलकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज। फुलटॉस चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला होता तो भूषणनं, कारण स्क्वेअर ऑफ द विकेट काही धावा निघत नाही, विकेटच्या समोर काही धावा निघत नाही, त्यामुळे काहीसं चित्रविचित्र शैलीनं गोलंदाजाची लय बिघडून टाकण्याचं कार्य मी करावं या इराद्यानं फटका टोलवण्याचा भूषणचा प्रयत्न हा असफल ठरतोय। निर्धाव चेंडू गणला जातोय। आता 21 चेंडू व 67 धावांचं आव्हान येऊन ठेपतंय।
परत एकदा एक सुरेख असा चेंडू, सलग 2 चेंडूंवर या ठिकाणी राजू दाभोलकर चकवतोय भूषणला. अनुभव म्हणजे क्रिकेटमध्ये काय चीज असते याचं प्रात्यक्षिक मैदानावर दर्शवताना दिसतोय. तो अनुभवी बुजुर्ग असा खेळाडू ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघाचा राजू दाभोलकर मैदानावर 35 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटक 4 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त. परत एकदा सुरेख असा चेंडू, यापूर्वीचा चेंडू ज्या तऱ्हेनं गणला गेला होता त्याची ओढणारा, त्याचं ॲक्शन रिप्ले, त्याच्या प्रति असा चेंडू हा राजू दाभोलकरचा सलग 3ऱ्या वेळी निर्धाव म्हणून गणला जातोय 35 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. केवळ नाममात्र 4 धावा 5 चेंडूंचा खेळ गणला जातोय तो राजू याच्या षटकातील, व तोच राजू आपल्या समोर सज्ज होतोय. यावेळी जमिनीलगत देखण्या असा फटका डावखुराचा फलंदाज भूषण टोलवतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. नॉन स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न भाऊचा असफल ठरतोय व ज्या ठिकाणी दुसरी धाव ही येऊ शकली नसती त्या ठिकाणी भूषणच्या खाती 2 धावा सहजगत्या जमा होत आहेत. 2 धावांनी षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. तो एकंदरीत सांघिक 5 षटकांच्या सांगत एकेरी 37 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. आता उर्वरित अवघ्या 18 चेंडूंचा खेळ शेष राहतोय व या 18 चेंडूंवर तब्बल 65 धावांचं खडतर लक्ष हे अर्थातच पिकॉक फार्म 70 संघासमोर ठेवलं जातंय. यानंतर होणारा सामना इनाया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम या 2 संघादरम्यान. मैदानावरनं सूचना येते की टीकेजी बिचोलीम संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय व प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेत इनाया ब्रदर्स तिसवाडी क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी तो निमंत्रित करतोय. यानंतर होणारा सामना इनाया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम. इनाया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी सूरज 11 बिचोलीम या 2 संघादरम्यान या ठिकाणी सामना होईल. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय टीकेजी सूरज बिचोलीम 11 संघ घेतोय व फलंदाजीसाठी निमंत्रण देतोय तो इनाया ब्रदर्स तिसवाडी संघाला. परत एकदा मैदानावर येऊया. प्रत्यक्ष घटनेत काय होतंय. 18 चेंडू, आवश्यकता ही 65 धावांची. जे षटक सामन्याला कलाटणी देणारं षटक ज्याचा प्रत्यय अनेक वेळा आम्हाला आलाय तेच षटक म्हणजे ध्रुव षटक फेकण्यासाठी आपाली कलगुटकर सज्ज होतोय. तो कॉमेंट्री बॉक्स यांच्या दिशेनं या ठिकाणी व स्ट्राईकला या ठिकाणी सामना करेल तो कल्पेश व नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज भूषण. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 37 धावा धाव फलकावर. 18 चेंडू 65 धावांची ही अतिगरज. आपाली कलगुटकर उंचपुरा असा गोलंदाज सडपातळ बांधायचा. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत राहतोय. झेल टिपण्यासाठी 2 क्षेत्ररक्षक साथ देत आहेत. अखेर ही साथ गौरवच्या दिशेनं जाते. गौरव झेल टिपतोय मोठ्या फटक्याच्या नादात. कल्पेश माघारी परत. गौरेश या ठिकाणी झेल टिपतोय. कल्पेश माघारी परततोय. तो चौथ्या गाड्याच्या स्वरूपात सांघिक 37 अशी धावसंख्या धावफलकावर असताना कल्पेशाची जागा घेण्यासाठी अर्थातच फलंदाज गौतम याची मैदानावर वर्णी लागते. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 37 धावा. आपाली कंडुटकर आपल्या नावलौकिकाला साजेशी अशी कामगिरी करतोय. पहिल्या चेंडूवर तो माघारी कल्पेशला परतवतोय. तोच आपाले आपल्या समोर येतोय. महत्वपूर्ण ध्रुव षटक फेकण्याची जबाबदारी त्याच्या खांदी व पहिल्या चेंडूवर तो यशस्वीता संपादन करतोय. फुलटॉस चेंडू खोलवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडूचा वेग एवढा होता की जयेश सारखा फलंदाज चकतोय. चेंडू पॉइंट क्षेत्रात जातोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू म्हणून समाप्त होतोय. तो गोलंदाज आपाली कलगुटकर याचा 37 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
फुलटॉस चेंडू, यावेळी मात्र काहीसा खराब चेंडू, काहीसा चेंडूमध्ये परिवर्तन घडून याचा प्रयत्न केला होता तो अर्थातच गोलंदाज आपलने कदाचित कलात्मक गोलंदाजी करावी. अकोट टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा चेंडू, यावेळी मात्र चकवतोय तो अर्थातच या ठिकाणी भूषण पाटीलला. 43 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक हे प्रगतीपथावर. परत एकदा एक स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, एक मात्र षटकार, या षटकातील वगळता बाकीचे सर्व चेंडू हे योग्य टप्प्यावरचे. आता मात्र दिशेमध्ये काहीसा भरकटतोय, बराच वेळ पंच या ठिकाणी खातर जमा करतायत व चेंडू अवैध असल्याचा निर्वाळ देत आहेत. 44 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. दिशा दिली जाते ती थर्डमॅनला, 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नसल्याने चेंडू सीमारेषेला गवसणी घालतोय. जयेशच्या खाती आणखी एक चौकार प्राप्त होतोय, भूषणच्या खाती आणखी एक चौकार प्राप्त होतोय व भूषण या चौकारानं पोहोचतोय तो वैयक्तिक 31 धावांवर. तर तब्बल 48 अशी धावसंख्या धावफलकावर ही झळकली जाते. इनिंगच्या सुरुवातीला कडवा प्रतिकार हा अपेक्षित होता, मात्र पारसा संघ या ठिकाणी आपल्या घरच्या मैदानावर कामगिरी भरीव करतोय. अकोट टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रात व परत एकदा 4 धावा या भूषण पाटीलच्या खाती जमा होत आहेत. ज्या चौकारानं एकंदरीत धावफलक स्थिरावतोय तो 52 धावांवर. बारा चेंडू, तब्बल अर्धशतकी मजल म्हणजे 50 धावांची अजूनही गरज. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज कोण येतोय ते पाहायचंय. बहुधा गोलंदाज आमिर साळगावकर याच्या हाती चेंडू हा सुपूर्द केला जातोय. पहिला चेंडू यॉर्कर लेन पद्धतीचा सुरेख असा चेंडू गणला जातोय. फटका मारण्याचा प्रयत्न तर फलंदाजानं केला होता, चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय, त्यानंतर पॅडला आदळतोय, सरळ यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावतोय व गौतम आल्या पावली स्वतःचा भोपळा न फोडता सांघिक 52 या धावसंख्येवर 5व्या गड्याच्या स्वरूपात गोलंदाज आमिर याची शिकार होत मैदानाच्या बाहेर जातोय. डीजे वर लागते. स्ट्राईकला या ठिकाणी भूषण पाटील सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय वैयक्तिक 35 धावांवर. गोलंदाज आमिर सज्ज. यावेळी मात्र सुरेख असा फटका, चेंडू जातोय तो अर्थातच डीप फाईन लेग क्षेत्रात. 4 धावांसाठी तो भूषण पाटील याच्या बॅट मात्र एक मात्र फलंदाज भूषण याचा अपवाद वगळता बाकीचे फलंदाज हे पूर्णतः अपयशी ठरतायत. ते ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचा सामना करण्यासाठी आणि त्याचेच पडसाद मैदानावर उमटताना दिसत आहेत की एका मोठ्या विजयाच्या दिशेनं ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघ आगेकूच करताना दिसतोय. 10 चेंडूंवर तब्बल 46 धावांची आवश्यकता ही पिकॉक फॉर्म 70 संघाला.
ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये मोठा फटका, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या आतमध्ये या ठिकाणी राहतोय. झेल टिपण्याची संधी क्षेत्ररक्षकाला निर्माण झाली होती, मात्र गगनाला गवसणी घालणारा हा फटका, हा झेल टिपण्याचा अंदाज चुकतोय क्षेत्ररक्षकाचा व या ठिकाणी भूषण पाटीलला एक जीवनदान प्राप्त होत वैयक्तिक 40 गाठतोय धावफलकावर तो भूषण. तर सांघिक धावसंख्या 57 धावांवर ही पोहोचलेली दिसते. 57 धावा 5 गडी बाद, आवश्यकता अजूनही 45 धावांची. नाममात्र 9 चेंडूंचा खेळ हा शेष. एक अशक्यप्राय असं आव्हान आपल्या खांदी घेत फलंदाज सूर्या व भूषण पाटील ही जोडगोळी कामगिरी करताना दिसत आहेत. ती पीकॉक फार्म 70 क्रिकेट संघासाठी मैदानावर गोलंदाज आमिर साळगावकर सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू फटका टोलवायचा होता तो कव्हर क्षेत्रात, मात्र टायमिंग फसतंय. चेंडू जातोय तो डीप लॉंग ऑफ क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षण होतंय. सूर्याच्या खाती एकेरी धावेची नोंद होते. सूर्या एकेरी धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला हळुवारपणे पोचवतोय. तो 58 या धावसंख्येवर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 गडी बाद 58 धावा, 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाज आपल्या समोर परत एकदा येतोय तो सफलता प्राप्त गोलंदाज आमिर साळगावकर. 4 चेंडूंवर 6 धावा खर्च करतोय व 1 सफलता ही स्वतःसाठी व ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघासाठी तो हस्तगत करतोय. सुरेख असा चेंडू, यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, ज्या चेंडूवर कोणतंही उत्तर नव्हतं ते भूषण पाटीलसाठी. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक स्वप्नील मळिक पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. आता नाममात्र 7 चेंडूंचा खेळ बाकी व तब्बल 44 धावांची ही अति आवश्यकता पीकॉक फार्म 70 क्रिकेट संघाला विजयासाठी. षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज आमिर हा सज्ज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत घरंगळत जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धाव भूषण पाटीलच्या खाती जमा होते. एकेरी धावेने भूषण पोहोचतोय तो वैयक्तिक 41 धावांवर. खेळ समाप्त होतोय तो 7 षटकांचा. इनिंगची सुरुवात झाली 102 धावांचा पाठलाग करताना. त्यावेळी वाटलं होतं की प्राथमिक पराभवापासून या ठिकाणी पीकॉक फार्म 70 क्रिकेट संघ काहीसा बोध घेईल, या मैदानावर कडवी झुंज देईल ती ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघाविरुद्ध व या सामन्यामध्ये चुरस निर्माण करेल, रंगत निर्माण करेल. मात्र त्याच्या विपरीत घटना घडते आपल्या घरच्या मैदानावर, घरच्या प्रेक्षकांसमोर. या पूर्वीच्या सामन्यात विजयश्री प्राप्त केल्याने ज्या जोशात होता ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघ, त्याच जोशात त्याच उत्साहात विजयाच्या आविर्भावात खेळ करतोय या महत्त्वपूर्ण सामन्यात. 102 धावांपासून प्रतिस्पर्धी संघाला रोखताना अवघ्या 7 षटकात 59 धावा खर्च करतोय व 43 धावांचं खडतर लक्ष येऊन ठेपतंय ते अवघ्या 6 चेंडूंवर. शेवटच्या षटक या डावातील सुरुवात करतोय तो अर्थातच गोलंदाज आपाली कलगोटकर. सुरेख असा चेंडू, यॉर्कर चेंडू, या चेंडूवर जगतोय तो भूषण. त्याचा साफ त्रिफळा उडतोय व बाद होऊन तो मैदानाच्या बाहेर जातोय 6व्या गड्याच्या स्वरूपात. नवीन फलंदाज विशाल कोरगावकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. आपाली कलगुटकरला मिळते ते आणखी एक यश. एकंदरीत त्याचं वैयक्तिक दुसरं यश. 15 धावा तो खर्च करतोय 1 षटक 1 चेंडू यांच्या गोलंदाजीवर.
2 सफलता प्राप्त करतोय. 61 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक पिकॉक फार्म 70 संघाचा. 7 षटक 1 चेंडू यांच्या सांकेतिकरीस गोलंदाज सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत राहतोय. यष्टिरक्षक स्वप्नील मळिक साधा सोपा झेल परतीचा टिपतोय. माघारी परतावं लागतंय ते फलंदाज या ठिकाणी विशालला. वर लागते. सलग 2 चेंडूंवर आपाली कलंगुटकर 2 सफलता प्राप्त करतोय. विकेट हॅट्रिक संपादन करण्याची दुर्मिळ संधी साथ देते ती आपाली कलंगुटकरला. मात्र प्रतिसाद कशा रीतीनं मिळतोय हे पाहायचं आहे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय तो फलंदाज. यष्टी मागे यष्टीसाठी हलकीच दाद मागितली होती ती स्वप्नील मळिकने. मात्र केवळ औपचारिकतेची ती दाद होती असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 61 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. 41 धावांची गरज. चेंडू टोलवला जातोय. एकेर धाव तर निश्चितपणे निघेल सूर्या याची खाती, यात कोणतीही शंका नाही. सूर्या एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय. 62 गाठली जाते धावफलकावर. आता अंतरिम 2 चेंडूंची औपचारिकता, तब्बल 40 धावांची ही नितांत गरज. स्ट्राईकला संकल्प तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा सूर्या. आडव्या बॅटने मारलेला फटका, चेंडू जातो तो मिड विकेटच्या पट्ट्यात. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. क्षेत्ररक्षण हे सुमार दर्जाचं होत आहे व ज्या ठिकाणी केवळ एकेर धाव मिळू शकले असती त्या ठिकाणी 4 धावा मिळत आहेत संकल्पला. चौकारानं संकल्प स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 66 धावांवर. 66 धावा 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज आपाली कलंगुटकर या सामन्याची सांगता करणाऱ्या औपचारिकतेचा चेंडू फेकण्यासाठी हा सज्ज होतोय. यावेळी फटका फसतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 2 षटकांमध्ये 3 सफलता 20 धावा खर्च. असं गोलंदाजीचं सुरेख पृथक्करण या ठिकाणी संपतंय ते आपाली कलंगुटकरचं. व अंतरिम चेंडू निर्धाव गेल्याने तब्बल 35 धावांनी विजयश्री संपादन करत ध्रुव पेंडेम संघ साखळी फेरीच्या या सामन्यात सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करतो. अंतिम दिवशी खेळवल्या जाणाऱ्या क्वालिफायर सामन्यामध्ये स्थान निश्चितीच्या दिशेनं आगेकूच करताना दिसतोय तो ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघ. तर दुसऱ्या बाजूने मात्र अंतिम दिवशी स्वप्नवत वाटचाल करायची असेल तर पिकॉक फार्म 70 क्रिकेट संघाला एक अविश्वसनीय खेळ हा त्यांच्या शेवटच्या सामन्यामध्ये करावा लागेल. सामना ठरतोय.
सामना जिंकतोय तो ध्रुव पेडणेम संघ. यानंतरचा होणारा सामना इनया ब्रदर्स तिसवाडी वर्सेस टीकेजी बिचोलीम या दोन संघादरम्यान. टीकेजी सूरज 11 बिचोलीम नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. इनया ब्रदर्स तिसवाडी क्रिकेट संघ फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. इनया ब्रदर्स तिसवाडी क्रिकेट संघाचे सलामीवीर हे मैदानावर जाताना दिसत आहेत. पहिल्या सामन्यात या ठिकाणी इनया ब्रदर्स तिसवाडी क्रिकेट संघाला पराभव पत्करावा लागला होता, म्हणजे या लढतीमध्ये विजय हा क्रमप्राप्त